Good morning, students. Today I will start your new chapter, chapter number 6, working with Windows 7. Okay. In previous chapter, you have learned the operating system. So I think all of you know about operating system. Okay. In this chapter, we will learn working with Windows 7. So what is a Windows 7? And in this chapter you have learned various topics just like Windows 7, features of Windows 7, basic component of a GUI window, basic operation of a mouse, different types of tabs in Windows operating system, selecting tab items, shortcut, setting date and time, Windows accessories, managing files and folders, shell commands, running an application programs, existing a program and control buttons. So let's start this chapter. Dashboard. Firstly, see dashboard. We have learned that operating system plays a vital role in the working of computer system. It is the software that manages the overall working of a computer system and provides interaction between user and the computer system. That means user and the hardware. Okay. We also know that there are two types of user interface that are embedded into an operating system for providing user interaction. That is a CUI and GUI. CUI that means character user interface and GUI that means graphical user interface. Windows operating system is one of the most popular and commonly used GUI operating system, and Windows 7 is the version of Windows operating system that is most commonly and widely used nowadays. So let's see what is a Windows 7. Windows 7 is a GUI based operating system developed by Microsoft. It has amazing features that have made it popular choice to be used at homes, office, educational institute and various other places. It has a user-friendly interface because that is a GUI, so it provides a user-friendly interface. That is a very convenient to use and every person who is not well versed with computer can learn and use it easily. GUI बेस्ड होने की वजह से ये यूज़र फ्रेंडली है और ऐसे पर्सन जो कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं भी हो वो भी अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के वर्क करेंगे तो वो ईज़िली इसको हैंडल कर सकते हैं और इस कंप्यूटर को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, मतलब उस पर सीख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये एनवायरनमेंट कैसा है, GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होने की वजह से ये यूज़र फ्रेंडली है और यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से ये कन्वीनियंट है कि अननोन पर्सन, अनलिटरेट पर्सन जो कि जिनको नॉलेज नहीं हो अबाउट computer system, it can also handle the computer system in very easily manner. That means it can learn it with easily. Okay, the user did not type command like in the CUI operating system, क्योंकि इसमें CUI ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह दैट मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की तरह हमको कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, कमांड लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से ये क्या है, हमारा GUI यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसमें कमांड याद करना होता तो जब हम कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, जब कंप्यूटर को हम अच्छे से समझते हो, कंप्यूटर एज लाइक हमारा सब्जेक्ट हो, हमने उस पर पूरी
एजुकेशन पूरी हमारी लर्निंग हो, पूरा समझा हो, मैंने सीखा हो उसको, तब हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। कब? CUI एनवायरनमेंट पे। लेकिन GUI एनवायरनमेंट पे आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी ना जानते हुए भी कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के आप वर्क थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट कैसा है? ग्राफिकल एनवायरनमेंट है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, so let's say this different version of Windows: Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and this time is a Windows 10। तो ये सारे हमारे डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग विंडोज़ हैं। ठीक है, देखिए विंडोज़ 1 कब बना? 1985 में। विंडोज़ आपका सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारे 1981 में आपका क्रिएट हुआ था MS-DOS, जो कि क्या है? विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये CUI एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें CUI दैट मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, ये ग्राफिकल नहीं है। इसमें आप कमांड देना होता था, तब जाके आप इस पर वर्क कर सकते थे। तो 1981 में आपका MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बना। फिर हमारा विंडोज़ 1 ऑपरेटिंग सिस्टम बना है कब? 1985 में। ओके, फिर आपका विंडोज़ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना? 1987 में। विंडोज़ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम 1990 में। विंडोज़ 3 में ही विंडोज़ NT आपका विंडोज़ 3 1990 में, और विंडोज़ NT आपका बना है 1993 में। विंडोज़ 95 1995 में। विंडोज़ 98 1998 में। विंडोज़ 2000 में। ठीक है, फिर विंडोज़ ME 2000 में बना है। विंडोज़ XP 2001 में। विंडोज़ विस्टा 2007 में। विंडोज़ 7 2009 में। विंडोज़ 8 2012 में, और विंडोज़ 10 आपका 2015 में। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ हैं। ठीक है, देखिए जो हर एक वर्जन हर ईयर में आ रहा है ना, तो हर एक ईयर में आपका कुछ अलग फीचर्स ऐड होके आ जा रहे हैं। फीचर्स ऐड होते जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यू वर्जन क्रिएट होता जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही है, वर्किंग उसकी वैसी ही है, लेकिन उसमें एडवांस फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़। तो सबसे पहला वर्जन आपका कौन सा है विंडोज़ का? जो कि है हमारा CUI एनवायरनमेंट में, जिसका नाम क्या है? MS-DOS। ठीक है, कब क्रिएट हुआ है? 1981 में। ओके, फिर फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 देखते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे विंडोज़ 7 के। देखिए, फॉलोइंग्स आर द सम ऑफ द distinct features of Windows 7 that have made it is the most popular and commonly used operating system. First आपका फीचर है यूज़र फ्रेंडली GUI इंटरफेस एंड मल्टीटास्किंग। ये फीचर्स तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि GUI है तो यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट ज़रूर होगा इसका। ठीक है, सो Windows 7 has a user-friendly GUI interface that allow you to work with a pointing device like mouse, okay, and any like mouse, और आपका pointing device में हम track ball भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब pointing device का यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या चीज़ इसमें फीचर्स है? It even allow you to open and work with more than one application program at a time। मल्टीटास्किंग के भी फीचर्स है, तो मल्टीटास्किंग दैट मीन्स मल्टीपल प्रोसेस at the same time, so you can also open the more than one application program at a time at the same time। okay, नेक्स्ट आपका है यूरोशेक फीचर। यूरोशेक फीचर दैट मीन्स
Windows 7 support EuroShake features that enable you to click a window pane and shake your mouse, minimize all other open window. You can shake the pane again to restore the window to their original size. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का फीचर्स है वही, दैट मीन्स आपका यूरो शेक है। एरो शेक में हम करते क्या है, एरो शेक का मतलब है कि जैसे आप माउस से अपने विंडोज़ पेन पर शेक करिए, इधर उधर करिए, ठीक है, शेक करिए, तो जो भी उस पर विंडो ओपन है वो विंडो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज पोजीशन पे चली जाएगी, और फिर से आप टास्क बार में जाके उस पर क्लिक करके अगेन आप उसको ओरिजिनल साइज़ में रिस्टोर करवा सकते हो। तो दैट इज़ अ एरो शेक फीचर। ओके, नेक्स्ट है आपका एरो थीम एंड एरो बैकग्राउंड। एरो थीम एंड एरो बैकग्राउंड, दैट मीन्स विंडोज 7 अलाउ यू टू यूज न्यू थीम्स or choose a slideshow of your favorite photographs to make your PC reflect your personal taste. दैट मीन्स आप इसकी बैकग्राउंड सेटिंग, जो हम डेस्कटॉप में अपने थीम्स लगाते हैं, जैसे मोबाइल में आप लोग अपने थीम लगाते हो, डेस्कटॉप सेट करते हो, वॉलपेपर सेट करते हो, वही है आपका यूरो थीम। तो इसमें न्यू एरो थीम दिए गए हैं, न्यू थीम्स दिए गए हैं। आप अपनी स्लाइड शो के फॉर्म में आएगा, उसको आप इधर उधर स्लाइड कर करके उसको चूज़ कर लीजिए, जो आपको फेवरेट, आपकी फ़ोटोग्राफ हो, फेवरेट थीम हो, उसको आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपका हाउस मीडिया स्ट्रीमिंग। हाउस मीडिया स्ट्रीमिंग क्या है, Windows 7 enables you to use your PC as a hub to store and share the music, videos, photos and even support TV function or stream it to support other device using the Play to option। देखिए इसमें होम मीडिया स्ट्रीमिंग, दैट मीन्स आपका जो अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ 7 इंस्टॉल किया है, विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो पीसी एज लाइक अ हब काम कर सकता है। हब दैट मीन जो आपका सेंट्रल डिवाइस होता है। जब हम नेटवर्किंग में सेंट्रल डिवाइस की बात करें, जो बीच का डिवाइस होता है जिससे सारे के सारे और कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ अ हब, ठीक है। तो आपका पीसी जस्ट लाइक अ हब काम करेगा, और टू स्टोर एंड शेयर म्यूज़िक, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, म्यूज़िक को, वीडियोस को, फ़ोटोज़ को, और अपने टीवी फंक्शन प्रोग्राम, मतलब कि आप टीवी को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, प्ले टू ऑप्शन रहता है उसमें, टीवी को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद आप उसमें जो आपके पीसी में जो वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, और भी जो भी चीज़ें हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो अपने टीवी पे। तो आपका कनेक्शन किससे हो गया, पीसी से। तो पीसी एज लाइक अ हब काम कर रही है, ठीक है। ये भी वर्क आप इसमें कर सकते हो, ये भी फीचर्स है। फिर है आपका होम ग्रुप। होम ग्रुप क्या है, होम ग्रुप इज़ अ फीचर इन विंडोज 7 दैट एनेबल यू टू ईजली कनेक्ट 2 or more PC रनिंग ऑन विंडोज 7 on your home network for the purpose of sharing. You can share picture, music, videos, document and printer with other people in your home group. It also enables you to share your media, document libraries with other people in your home group. The home group password protected and you can control who can share, view the files. You can also make your files read only so that the other people can only view them but cannot modify or delete them. देखिए ये जो होम ग्रुप फीचर्स होता है, होम ग्रुप फीचर्स में क्या किया आपने कि आपके पास जैसे एक मोबाइल कंप्यूटर है, ठीक है, आपने उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया दूसरे कंप्यूटर से, 2 or more, एक कंप्यूटर है और उसी कंप्यूटर को आपने 2 से ज़्यादा कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने अपने घर पे एक तरीके से होम नेटवर्क, आपके पास कंप्यूटर है, आपके भाई के पास है, या फिर आपके पास है, फिर आपके भाई के पास टैबलेट है या मोबाइल है, ठीक है, तो आपने उससे कनेक्ट कर दिया होम ग्रुप के थ्रू। और फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप जैसे हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं ना, तो जस्ट लाइक उसी तरीके से अब अपनी पिक्चर्स को, अपने वीडियोस को, डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटर को, जो भी और उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं, उनको आप उस पर शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गई, एक नेटवर्किंग बन गई, ठीक। और इसके साथ साथ आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। जैसे आपने
होम ग्रुप अलाउ कर दी। होम ग्रुप अलाउ करने के बाद अब कोई भी कभी भी उससे कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक। जैसे आपका कंप्यूटर जो है वो सर्वर बन गया और जो अदर्स हैं वो आपके क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। अब आपने उसको अलाउ कर दिया, आप उसको परमिशन दे रहे हो, तो वो आपकी फ़ाइल, म्यूज़िक, वीडियो और आपके यहाँ तक कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उनको भी शेयर कर ले रहा है, वो भी नेटवर्क के थ्रू शेयर हो जा रहे हैं। लेकिन आप उसमें प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो। जैसे हम लोग जब नेटवर्किंग करते हैं तो सर्वर और क्लाइंट, सर्वर में अलाउ करने के लिए, सर्वर के अंदर एंट्री के लिए, सर्वर से कनेक्शन के लिए हम क्लाइंट को पासवर्ड देना होता है। जब क्लाइंट पासवर्ड देता है तब सर्वर उसके लिए एक्सेस मतलब कि कनेक्शन करती है, ठीक है। तो अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगाना चाहते हो तो पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्शन से क्या होगा कि अगर आप उस जो मेन आपका सर्वर कंप्यूटर है उससे अगर फाइल्स को शेयर करना चाह रहे हो, उसकी फाइल्स को देखना चाह रहे हो, तो वह पहले पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड आपको पता होगा तो आपने पासवर्ड दे दिया, देन उसके बाद वो अलाउ कर देगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप रीड ओनली ऑप्शन भी लगा सकते हो। चाहते हो कि हाँ सर्वर की फ़ाइल देखे, लेकिन सर्वर की फ़ाइल में कोई भी चेंजेस, जैसे आपने अपनी फ़ाइल सेव करी और आपका फ्रेंड है वो आपके सर्वर से, आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, आपके कंप्यूटर की फ़ाइल को देख सकता है, ठीक। लेकिन आप चाहते हो कि वो फ़ाइल तो देखे लेकिन हमारी फ़ाइल में कोई चेंजेस ना करे, सिर्फ व्यू करे, उसको सिर्फ देख सके। तो आप उसमें रीड ओनली लगा दोगे, रीड ओनली फ़ाइल कर दोगे, तो वो सिर्फ आप देख पाएगा फ़ाइल, उसमें कोई भी मॉडिफाइड या डिलीट नहीं कर सकता है। ओके, सो ये फीचर है आपका होम ग्रुप। दैट मीन्स कि एक तरीके से होम नेटवर्किंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट एंड डिजिटल टीवी। यू कैन वॉच द इंटरनेट टीवी or turn your PC into a digital video recorder by using the support in Windows Media Center for many new broadcast TV tuner। देखिए ये इंटरनेट एंड डिजिटल टीवी, दैट मीन्स कि आप अपने कंप्यूटर में अगर टीवी भी देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इसमें एक ऑप्शन रहता है विंडोज़ मीडिया सेंटर। वो विंडोज़ मीडिया सेंटर को सपोर्ट करता है। विंडोज़ मीडिया सेंटर पे आप जाओगे और इसके लिए टीवी ट्यूनर, एक टीवी ट्यूनर होता है, हार्डवेयर है उस, ये देखिए टीवी ट्यूनर एंड एडिशनल हार्डवेयर मैनी बी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन विंडोज़ मीडिया सेंटर फीचर टू फंक्शन स्मूथली। देखिए अगर आप कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर है, उसी कंप्यूटर को जस्ट लाइक एज लाइक अ टीवी भी बनाना चाहते हो कि टीवी भी आए, ठीक है, तो टीवी की तरह काम करने के लिए उसको, उसमें टीवी ट्यूनर एक हार्डवेयर होता है जो कि टीवी के प्रोग्राम्स को उसमें देगा। तो टीवी ट्यूनर को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए और विंडोज़ मीडिया सेंटर पे जाके आप उसमें सेटिंग कर दीजिएगा। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टीवी को भी इसमें देख सकते हो। तो इंटरनेट एंड डिजिटल टीवी भी वर्क इसमें कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या है? द जंप लिस्ट फीचर अलाउ यू टू क्विकली एक्सेस योर फेवरेट रिसेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड फाइल। दैट मीन्स जैसे आपको 1 by 1 ऑप्शन करके नहीं देखना है, रैंडमली आप जिसको आपकी फेवरेट लिस्ट है, फेवरेट चीज़ है, उस पर क्विकली एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए जंप लिस्ट का भी फीचर इसमें अवेलेबल है। फिर है आपका इम्प्रूव्ड टास्क बार। इम्प्रूव्ड टास्क बार इन विंडोज 7 यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम anywhere on the task and rearrange program in any way you like by clicking and dragging. Point to a taskbar icon to see a thumbnails preview of the opening files and program. Then you move your mouse over a thumbnail to preview the Windows full screen and arrow peak features also available on the taskbar। देखिए विंडोज़ 7 में आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ है, तो टास्क बार में आप सिर्फ उसको पिन करोगे, सिर्फ एक बार क्लिक करोगे, ठीक है, और जैसे ही क्लिक करोगे वो प्रोग्राम आपका रीअरेंज हो जाएगा पूरा डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या किया, टास्क बार में, टास्क बार जानते हो ना जो सबसे नीचे होता है, जिसमें आप जो भी वर्क कर रहे हो, जो भी आपका देखो टास्क क्या होता है, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है टास्क। टास्क मतलब प्रोसेस। जो इनएक्टिव स्टेज में रहता है वो प्रोग्राम होता है, जो एक्टिव स्टेज में रहता है जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो आपका टास्क रहता है, ठीक। तो आपका जो भी इस समय वर्किंग विंडोज़ ओपन है वो आपकी टास्क बार में रहती है। अब टास्क बार में आप चाहते हो उस पर पिन करोगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगी,
वो थंबनेल्स की फॉर्म में नीचे रहती है, उस पर आपने क्लिक किया, अवेलेबल रहती है, उस पर आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया वो तुरंत क्या हो जाएगी, आपके ऊपर के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आपका विंडोज़ में अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट फीचर है आपका एरो स्नैप। एरो स्नैप, this feature enables you to resize and expand windows more quickly. It also allow to compare the content of two different windows, ठीक है, टू डिफरेंट विंडोज़। दैट मीन्स कि एरो जो आपका ये फीचर्स है, इसमें आपका जो मतलब कि रीसाइज एंड एक्सपैंड विंडोज़ मोर क्विकली, आप अपने विंडोज़ को एक्सपैंड कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। जैसे कभी मिनिमाइज़ किया, कभी मैक्सिमाइज़ किया, तो ये सारी चीज़ें, या फिर उसमें आपने ये ऐसे करके इसको ड्रैग करके यूँ ऐसे करके यहाँ पर आ जाता है, इसको ड्रैग करके आप इसको मिनिमाइज़ और भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मल मिनिमाइज़ का ये इतना आया, अब अगर आपको और इतना भी कम करना है तो यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, जो भी विंडो ओपन कर रहे हो। एरो पिक, द फीचर मेक ऑल द ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट सो दैट यू कैन सी द डेस्कटॉप, ठीक है। एरो पिक फीचर मतलब है कि आपकी जितनी भी विंडोज़ रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, और आप अगर आप चाहते हो इसलिए आप उसको डेस्कटॉप पे भी देख भी सकते हो। विंडोज़ सर्च एंड लाइब्रेरीज़, अब इसमें सर्च एंड लाइब्रेरीज़ दैट मीन्स कि जो भी दिस फीचर एनेबल्स यू टू सर्च द पीसी एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू योर नेटवर्क टू फाइंड आइटम रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर स्टोर्ड। आपके कंप्यूटर के अंदर, फोल्डर्स के अंदर, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट, ड्राइव्स, कहीं पर भी आपकी जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो जहाँ पर भी स्टोर हैं लाइब्रेरी में, वहाँ पर आप इसमें सर्च फीचर होता है, उस सर्च पर आप क्लिक करोगे और अपनी फाइल्स का नाम दोगे, वो तुरंत आपको सर्च करके उसको ओपन कर देगी, ठीक है। ये भी है इसमें आप मतलब कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्च पे करिए, सर्च पे फाइल करोगे, आपकी तुरंत फाइल ओपन हो जाएगी। Windows 7 is compatible with touch screen monitor. The feature enable you to interact with your PC with a टच स्क्रीन मॉनिटर बाय यूजिंग योर फिंगर एंड मल्टी टच जेस्चर। देखिए विंडोज़ टच भी आपका विंडोज़ 7 में अलाउ करता है, ये भी करता, इसमें आपको टच स्क्रीन फीचर दिया गया। दैट मीन्स आपको अपने पीसी से इंटरेक्ट होने के लिए सिर्फ मॉनिटर पे टच स्क्रीन करना होगा, फिंगर से फिंगर क्लिक करना होगा, फिंगर से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी विंडोज़ को ओपन कर सकते हो। तो ये भी टच स्क्रीन का भी ऑप्शन आपका विंडोज़ टच विंडोज़ 7 में अवेलेबल है, ठीक है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास हम आपको बताएंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ GUI विंडो। ओके क्लास, थैंक यू।